Good morning to all of you students. Today we are going to start our next chapter, chapter 6, The 100 Dresses, part 2nd, written by L. Basor Easter. In the second part of this story, Wanda leaves the school without any prior information. She does not even attend the school when she was being announced a winner of the drawing contest. Her father writes a letter to Miss Mason about the reason. The students feel ashamed for their behavior, especially Peggy and Maddie. They both realize their mistake and write a letter to Wanda in a friendly manner. Wanda replies and requests Miss Mason to give her two drawings to Peggy and Maddie. Now we are going to discuss about the characters. So first is Wanda Petronsky. Wanda Petronsky is a poor Polish girl with a funny name, wears same blue dress always, boasts of having 100 dresses. Next is Peggy. Peggy always teases Wanda, creates a game to ask Wanda about dresses, different from others, never made Wanda cry by teasing the most popular and pretty girl in the school. Next is Maddie. Always teases Wanda, does not want others to tease her, a very close friend of Peggy, a poor girl but never boasts like Wanda. Next is Miss Mason. Miss Mason was their class teacher who helps the students and supports them. Next is Mr. Petronsky. Mr. Petronsky was Wanda's father who wrote the letter to Miss Mason about Wanda's absence in the school. Now, students, we are going to discuss the summary of this chapter. So, first point is letter to Miss Mason फ्रॉम वांडाज फादर. वांडा के जो फादर थे उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया मिस मैसन को. वैन एवरीबडी वॉज प्रेजिंग वांडाज आर्ट एंड ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस ड्रॉन बाय हर, a notice from the principal came. Everybody was asked to assemble. Miss Mason announced that she had a letter from Wanda's father and she would read it loudly before the class. जब एवरीबडी वॉज प्रेजिंग, सभी व्यक्ति वांडा की जो आर्ट है, उसकी जो ड्राइंग है, जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी, उसकी प्रेज कर रहे थे. अ नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल केम. एक नोटिस आया मिस मैसन के पास में प्रिंसिपल का लिखा, प्रिंसिपल रूम से. एवरीबडी वॉज आस्क्ड टू असेंबल. सभी व्यक्ति को इकट्ठा होने के लिए कहा गया. मिस मैसन अनाउंस दैट. मिस मैसन ने अनाउंस किया कि उसके पास एक लेटर आया है वांडा के फादर का एंड शी वुड रीड इट, और वो इसे सभी को पढ़ के सुनाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज मिस मैसन रीड्स द लेटर. अब वो लेटर को रीड करती हैं. मिस मैसन who is their class teacher, read the letter in which Mr. Petronsky, Wanda's father, told about Wanda's absence and informed that she was leaving the school because she was fed up of all the bullying that was going on. He informed that his family was going to settle in a big city where people are not going to laugh or tease them for their name, which everyone considered funny. मिस मैसन ने जो लेटर लिखा हुआ था, जो मिस्टर पेट्रोंस्की के द्वारा लिखा हुआ आया, उस टोल्ड अबाउट वांडाज एब्सेंस, उसमें बताया गया कि जो वांडा की जो एब्सेंस थी उसके बारे में, और इन्फॉर्म किया गया कि शी वॉज लिविंग द स्कूल, वो स्कूल छोड़ रही थी, बिकॉज शी वॉज फेड अप, क्योंकि अब वो थक चुकी थी अपना मजाक बनवाते हुए. ही इन्फॉर्म दैट हिज फैमिली, और उसने इन्फॉर्म किया कि उसकी जो फैमिली है
वो भी सेटल होने जा रही थी इन अ बिग सिटी में, वेयर पीपल आर नॉट गोइंग टू लाफ, जहाँ पर जो लोग हैं वो हंसते नहीं हैं और ना ही परेशान करते हैं, फॉर दियर नेम, उनके नेम के लिए, विच एवरीवन कंसिडर्ड फनी, जो कि हर व्यक्ति फनी मानता था। नेक्स्ट पॉइंट इज मिस मैसन्स रिएक्शन टू द लेटर। मिस मैसन का जो रिएक्शन है लेटर के प्रति वो क्या था? व्हेन मिस मैसन फिनिश द लेटर शी अंडरस्टूड द मैटर एंड आस्क्ड एवरीवन नॉट टू हर्ट anyone's feelings due to his or her name. She asked them to think about this matter. As Mr. Petronsky hadn't blamed anyone, the students of the class felt ashamed. When Miss Mason finished the letter, जब जो मिस मैसन थी उन्होंने फिनिश किया लेटर, she understood the matter, तो वो मैटर समझ गई, and asked everyone, और उसने सभी से पूछा, कहा, नॉट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग, कि कभी भी किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं करो, ड्यू टू हिज और हर नेम, उसके नेम के लिए, शी आस्क्ड देम टू थिंक अबाउट दिस मैटर, उन्होंने उनसे कहा कि इस मैटर के बारे में सोचे, एज मिस्टर पेट्रोन्स्की हैडंट ब्लेम्ड एनीवन, क्योंकि मिस्टर पेट्रोन्स्की ने किसी पर्टिकुलर किसी पर ब्लेम नहीं किया, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास फेल्ट अशेम्ड, अब वो फील करने लगे, अशेम्ड मीन्स शर्म फील करने लगे। नेक्स्ट पैगी एंड मैडीज़ रिएक्शन। अब जो लेटर है, लेटर के बाद में पैगी और मैडी की जो रिएक्शन है वो क्या है? व्हेन मिस मैसन लेफ्ट दिस क्लास एवरीबडी वॉज साइलेंट एंड फीलिंग अशेम्ड ऑफ दियर बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा, दो वांडा's father hadn't blamed them, but Peggy and Maddie were guilty of their behavior. Maddie was very upset, though she never teased Wanda directly. She remained a silent spectator and never stopped Peggy. Peggy, who teased Wanda every time, also felt ashamed, and both of them decided to go to her home to seek forgiveness. When Miss Mason left the class, जब मिस मैसन ने क्लास लेफ्ट कर दी, एवरीबडी वॉज साइलेंट, सभी व्यक्ति साइलेंट थे और वो अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे वांडा के प्रति। दो वांडास फादर, यद्यपि जो वांडा के जो फादर हैं उन्होंने किसी पर पर्टिकुलर पर ब्लेम नहीं किया, बट पैगी एंड मैडी वर गिल्टी, किंतु जो पैगी और मैडी थी वो अपने बिहेवियर पे गिल्टी फील कर रही थी। मैडी वॉज वेरी अपसेट, मैडी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, दो शी नेवर टीज वांडा डायरेक्टली, यद्यपि उसने वांडा को डायरेक्टली तरीके से परेशान नहीं किया। शी रिमेन अ साइलेंट स्पेक्टेटर, वो चुपचाप दर्शक बनकर देखती रहती, एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी, और उसने कभी पैगी को वांडा के प्रति टीज करने को कभी स्टॉप नहीं किया। पैगी हु टीज वांडा एवरी टाइम, पैगी जो हमेशा वांडा को हमेशा ही परेशान करती थी, आल्सो फेल्ट एशेम्ड, वो भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, एंड बोथ ऑफ देम, और इन दोनों ने, दोनों मीन्स पैगी एंड मैडी ने डिसाइड किया कि वो उसके घर जाएंगी और उससे माफ़ी मांगेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपेंटेंस ऑफ पैगी एंड मैडी। पैगी और मैडी का जो पश्चाताप था वो क्या था? आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर, बोथ पैगी एंड मैडी वेंट टू वांडा's house at Boggins Heights. Peggy still believed that she hadn't done any harm, but Wanda had taken it otherwise. Wanda's house had a worn-down look but was neat and clean, just like her faded blue dress. But the family had already left. Maddie was very upset and felt that she would never be able to express her gratitude to Wanda. After the school was over, स्कूल के ख़त्म होने के बाद, both Peggy and Maddie went to Wanda's house. दोनों वांडा के घर की ओर गई बोगिन साइड में। Peggy still believed that she had not done any harm. Peggy अभी भी विश्वास करती थी कि उसने उसे कोई भी हार्म नुकसान नहीं पहुंचाया, बट वांडा हैड टेकन इट
अदरवाइज, किंतु जो मजाक किया था उसे वांडा ने अदरवाइज दूसरे मतलब में ले गई। वांडा का जो हाउस था वो अच्छा नहीं था, उसकी लुकिंग अच्छी नहीं थी, बट वॉज नीट एंड क्लीन, किंतु वो नीट था और क्लीन था, जस्ट लाइक हर फेडेड ब्लू ड्रेस की तरह। बट दी फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट, किंतु उन्हें कोई भी नहीं मिला क्योंकि जो फैमिली थी वो पहले ही मूव कर चुकी थी। मैडी वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, एंड फेल्ट दैट, और उसने फील किया कि शी वुड नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस हर ग्रेटिट्यूड टू वांडा, कि वो कभी भी व्यक्त नहीं कर पाएगी अपना आभार वांडा के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा फ्रॉम पैगी एंड मैडी। अब एक फ्रेंडली लेटर लिखा गया वांडा के लिए पैगी और मैडी के द्वारा। पैगी tried to defend herself although she felt sorry for her behavior. She said if she hadn't teased Wanda about her 100 dresses, she would not have got such an idea to draw the dresses and won the contest. But Maddie decided that she would never be silent and oppose others against teasing anyone, even if she had to lose her friend. They wrote a letter telling Wanda about the result of drawing competition. They meant to ask forgiveness for their rude and mean behavior by doing so. पैगी जो थी वो कोशिश कर रही थी अपने आप को डिफाइन करने के लिए, यद्यपि शी फेल्ट सॉरी फॉर हर बिहेवियर, यद्यपि उसने सॉरी फील कर लिया था अपने बिहेवियर के लिए। शी सैड, उसने कहा, इफ़ शी हैड नॉट टीज्ड वांडा, कि यदि वो टीज़ नहीं करती वांडा को उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में, शी वुड नॉट हैव गोट सच एन आइडिया, तो वो उसे इतना अच्छा आइडिया नहीं मिल पाता कि वो अपने ड्रेसेस को ड्रॉ करती और इस कॉन्टेस्ट को जीत जाती। बट मैडी डिसाइडेड दैट शी वुड नेवर बी साइलेंट, कि वो अब कभी भी साइलेंट नहीं रहेगी, एंड अपोज अदर्स अगेंस्ट टीजिंग एनीवन, और उन लोगों के खिलाफ रहेगी जो दूसरों को टीज करते हैं। इफ़ शी हैड टू लॉस हर फ्रेंड, चाहे वो उसे अपने फ्रेंड को लॉस करना पड़े तो भी वो साइलेंट नहीं रहेगी। दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा, टेलिंग वांडा अबाउट द रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वांडा को ड्राइंग कॉम्पिटिशन के रिजल्ट के बारे में बताते हुए। दे मीन टू आस्क फॉरगिवनेस, और उन्होंने यह भी लिखा कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं फॉर देयर र्यूड एंड मीन बिहेवियर, अपने मतलबी बिहेवियर के लिए इस तरह की गलती को करके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ वांडाज रिप्लाई। अब वांडा का जो रिप्लाई आता है वो क्या होता है। मैडी एंड पैगी वेटेड लॉन्ग फॉर वांडाज रिप्लाई टू दियर फ्रेंडली लेटर। मैडी और पैगी वेट करते हैं लंबे समय तक वांडा के रिप्लाई के लिए, उनके फ्रेंडली जो उन्होंने लेटर लिखा था उसके रिप्लाई के लिए। आफ्टर फ्यू मंथ्स दे गोट द रिप्लाई एड्रेस टू मिस मैसन। शी आस्क्ड मिस मैसन टू गिव द ड्राइंग of the green dress to Peggy and the blue one to Maddie. She told her that she had joined a new school but missed her old school and her teacher. Maddie ran through thoughts about the events and pinned the dress on her wall. She could see her face in that dress. She ran over to Peggy's house and they both looked at the green dress with red trimming so that they could see Peggy's face in it. Maddie started to cry, remembering all the insulting statements she passed for Wanda. Peggy consoled her. Maddie and Peggy waited. अब वो वेट कर रहे थे लंबे समय तक जो उन्होंने वांडा को लेटर लिखा था उसके रिप्लाई के लिए। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद में, दे गोट द रिप्लाई, उन्हें एक रिप्लाई मिला जो कि एड्रेस किया गया था मिस मैसन को। शी आस्क्ड मिस मैसन, जो वांडा थी उसने मिस मैसन को एड्रेस किया, टू गिव द, मिस मैसन को बताया कि जो ड्राइंग है ग्रीन ड्रेस वाली वो पैगी को दे दी जाए और ब्लू वाली मैडी को। शी टोल्ड हर दैट, और उसने यह भी बताया कि उसने नया स्कूल ज्वाइन कर लिया है बट वो अपने पुराने स्कूल और जो टीचर हैं उन्हें मिस करती है।
मैडी रन थ्रू थॉट्स अबाउट द इवेंट्स, और मैडी जो थी वो दौड़ कर गई सोचते हुए अबाउट द इवेंट्स, उन घटनाओं को, और उन्होंने उस ड्रेस को वॉल पर लटकाया। शी कुड सी, अब वो उस ड्रेस में, जो ड्रेस उसने बनाई थी उसमें अपना फेस देख सकती थी। शी रन ओवर टू पैगीज होम, वो दौड़ते हुए पैगी के होम गई। एंड दे बोथ लुक्ड, और उन्होंने दोनों ने देखा ग्रीन ड्रेस को जो कि रेड ट्रिमिंग की हुई थी, सो दैट दे कुड सी पैगीज फेस इन इट, ताकि वो पैगी का फेस उसमें देख सके। मैडी स्टार्टेड टू क्राई, मैडी रोना स्टार्ट किया मैडी ने। रिमेंबरिंग ऑल द इंसल्टिंग स्टेटमेंट, जो भी उन्होंने इंसल्ट की थी उन्हें सोचते हुए। शी पास्ड फॉर वांडा, वांडा के प्रति। पैगी कंसोल्ड हर, पैगी ने भी अपनी गलती को माना। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू द sentences which are highlights this chapter. First, Miss Mason made the classroom fully attentive before reading out the letter by Vandra's father informing about her absence. The Petronsky family decided to settle in a big city to avoid the humiliation of Vanda at the school. Next, everybody got shocked and felt sorry after listening to the letter of Mr. Petronsky. Maddie was very upset and couldn't concentrate on her study. Maddie felt herself coward as she never stopped Peggy from making fun of Wanda. Maddie and Peggy went to find Wanda at her house at Boggins Heights. They could not meet her as she had already left the place with her family. Peggy tried to defend her behavior, but Maddie was not happy for all of that. Peggy and Maddie wrote a letter to Wanda telling her she had won the contest, but Wanda didn't reply for a long time. Wanda wrote a letter to Miss Mason to give her drawings to the girls as she had new ones at her home. Wanda missed her old school and her teacher. She wanted to gift special drawings of a green dress and a blue one to Peggy and Maddie respectively. Maddie found her own face in the drawing she got from Miss Mason, sketched by Wanda. She rushed to Peggy's house to tell that both Peggy and Maddie found Peggy's face in the green dress gifted to Peggy. Maddie cried for her behavior and promised herself not to be a silent spectator anymore, even if she was to lose her close friend. Peggy consoled her by saying that Wanda liked them. Maddie agreed and blinked away the tears that came every time she thought of Wanda Petronsky. So students, I hope you must have understood the summary of this chapter. So student, watch and listen this video very carefully. Thank you so much.